Hello children, welcome to my channel. In this video, I am going to learn about the poem Whose Place Is It Anyway? And the writer is Martin Kisco. Martin Kisco is a poet, composer and screenwriter. He has composed over 200 scores for film and television and released 8 albums. He is popularly known as UK's Green Poet. Whose place is it anyway? From his collection of poems, Green Poems for a Blue Planet. In this thought-provoking poem, the poet writes about the animals and trees under threat of extinction due to human activities. मार्टिन किस्को को ग्रीन पोएट कहा जाता है बिकॉज उनका सारे पोएम ही एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है। हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कैसे ये प्लांट्स एनिमल्स सब सफ़र कर रहे हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स सब कैसे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, यही मार्टिन किस्को ने इस हुज प्लेस इज इट एनीवे इसी पोएम में वही एक्सप्लेन किए हैं। Over 2/3 of the animals and plants that once lived on earth are now extinct because of our human activity. At first, I will read the whole poem once. The golden mole is threatened by the workings of a mine. The pine marten and polecat live on borrowed time. Hippos cannot hide from illegal poachers gone. Do the cheetahs of Botswana watch their last setting suns? As Arctic ice dissolves and polar bears decline, can the wolves of Ethiopia trust humankind? Will the white-tipped shark and angel shark avoid the fishing trawl? How soon until the Ampingo tree takes its final fall? The manta ray is troubled by pollution of waters, while cats of the Andes caper from a slaughter. Will the jaguar outrun the hunter's cold pursuit? Can we save our ponds for the great crested newt? Will snakes find their lairs as habitat turns to road? Does the parking lot come first or the Puerto Rican toad? Will koalas in their hollows survive the ruthless logging? Shall we bother to find out, or is that just too much slogging? Why don't we remember those with whom we share the earth? And why won't we honor and value their true worth? We can't let our best friends simply vanish without trace. So let's work together and restore their rightful place. तो यहाँ पर राइटर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की वजह से, हम ह्यूमन बीइंग की वजह से कैसे सारे जानवर और प्लांट सफ़र हो रहे हैं, वही इसी पोएम में बताए हैं मार्टिन किस्को। तो लेट अस स्टार्ट। The golden mole is threatened by the workings of a mine. The pine marten and polecat live on borrowed time. The golden mole is threatened by the workings of a mine. मतलब golden mole मतलब एक प्रजाति का चूहा होता है जिसको छुछुंदर बोलते हैं। वो मिट्टी के नीचे रहता है। वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से वो भी खतरे में है। मतलब वर्किंग्स ऑफ ए माइन मतलब हम सब माइन के वर्क करते हैं। माइंस की खुदाई होता है, एक्सकवेशन करते हैं अर्थ को, और कोल जैसे गोल्ड ऐसे जैसे सारे अदर मिनरल्स हम उसकी खुदाई करते हैं, उसको लाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो होता है वो इसकी वजह से गोल्डन मोल अफेक्ट होता है। उसके रहने का जगह उसको नहीं मिलता। द पाइन मार्टेन एंड पोलकैट लिव ऑन बोरोड टाइम। द पाइन मार्टेन
Pine marten means an animal from North Europe, about the size of a domestic cat. नॉर्थ यूरोप में वो दिखाई देता है वो, और पोल कैट वो जो नीचे रहते हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं. हिप्पोज कैन नॉट हाइड फ्रॉम इलीगल पोचर्स गन्स. हिप्पोज भी अपने आप को हाइड नहीं कर पाएंगे इलीगल पोचर्स की गन की वजह से. वो डू द चीतास ऑफ बोट्सवाना वाज देयर लास्ट सेटिंग सन्स. बोट्सवाना एक जगह है, वहाँ के चीतास वो भी क्या अपना लास्ट सेटिंग सॉन्ग देख पाएंगे? वो भी क्या सरवाइव कर पाएंगे? यहाँ राइटर ने यही बताए हैं कि हम ह्यूमन की वजह से इन सब के लाइफ डेंजर में है. वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? हम ह्यूमन के वजह से ही सब परेशान में है, सबके लाइफ थ्रेटन है. एज आर्कटिक आइस डिजॉल्व्स एंड पोलार बियर्स डिक्लाइन. यहाँ पे राइटर यही बताए हैं कि आर्कटिक आइस जो है वो डिज़ल्व हो रहा है हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से. हम ह्यूमन की वजह से ये सारे एनवायरमेंट पोल्यूट है. इसकी वजह से आर्कटिक आइस जो डिज़ल्व हो रहा है उसी की वजह से पोलार बियर्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं. वो भी एक दिन सर्वाइव नहीं करेंगे, हम वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. यहाँ पर राइटर यही बोलना चाहते हैं कि humans are now responsible for causing changes in the environment that hurt animals and plant species. We take up more space on earth for our homes and cities. We pollute habitats. We illegally hunt and kill animals. हम ह्यूमन की वजह से ही सबकी लाइफ अब खतरे में है. सभी एनिमल प्लांट स्पेसीज की लाइफ खतरे में है. कैन द उल्व्स ऑफ इथियोपिया ट्रस्ट ह्यूमन काइंड. इथियोपिया के उल्व्स के लाइफ भी अब खतरे में है. वो भी सरवाइव कर पाएंगे क्या? ह्यूमन काइंड की वजह से उल्व के लाइफ भी डेंजर में है, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. विल द फाइटिव शार्क एंड एंजल शार्क अवॉइड द फिशिंग ट्रॉल. एक फाइटिव शार्क एंड एंजल शार्क दो किस्म के शार्क हैं. वो आजकल जो फिशिंग हो रहा है, बड़े बड़े ट्रॉल लेकर लोग फिशिंग कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज में शार्क को भी नहीं छोड़ते लोग, उसकी फ्लैश भी. हाँ, तो फिर फाइटिव शार्क एंड एंजल शार्क उनके लाइफ भी खतरे में है. हाउ सून अंटिल द एम्पिंगो ट्री टेक्स इट्स फाइनल फॉल. एम्पिंगो ट्री एक अफ्रीकन ट्री है. वो बड़े बड़े वुडलैंड में पाया जाता है. उसके वुड भी बहुत कॉस्टली होता है, बहुत डेंस एंड ड्यूरेबल ट्री है ये भी एक एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट नहीं कर पाएगी. उसके लाइफ भी खतरे में है. ये भी टैक्स इट्स फाइनल फॉल. इसका लाइफ भी क्या अब सेफ नहीं है? यही राइटर बोल रहे हैं यहाँ पर. हाउ सून अंटिल द एम्पिंगो ट्री टैक्स इट्स फाइनल फॉल. द मांता रे इज ट्रबल्ड बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर्स while cats of Andes scatter from a slaughter. The manta ray is troubled by pollution of waters. हम ह्यूमन लोग, we human are responsible for the water pollution, air pollution, all environmental pollution. तो एक मांता रे है, एक टाइप ऑफ फिश है, वो भी ट्रबल में है. वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा वाटर पोल्यूशन की वजह से. विल कैट्स ऑफ एंडिस स्कैपर फ्रॉम ए स्लॉटर. एंडिस में एक जब कैट्स हैं वो भी स्लॉटर से नहीं बच पाएंगे. विल द जैगुआर आउटरन द हंटर्स कोल्ड परस्यूट. कैन वी सेव आवर पॉन्ड्स फॉर द ग्रेट क्रेस्टेड न्यूट. जैगुआर एक टाइप ऑफ टाइगर है. हंटर उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं और उसे भी
अपना लाइफ को खोना पड़ रहा है। अब कैन वी सेव आवर पॉन्ड्स फॉर द ग्रेट क्रेस्टेड न्यूट? हम हमारी पॉन्ड को क्या सेव कर पाएंगे फॉर ग्रेट क्रेस्टेड न्यूट? न्यूट मतलब एक लिजार्ड टाइप ऑफ एनिमल होता है। उसके लिए क्या वो हमारे पॉन्ड में ही रहता है? वो हमारे पॉन्ड को उसके लिए क्या हम सेव कर पाएंगे? विल स्नैक्स फाइंड देयर लेयर्स एट हैबिटेट टर्न्स टू रोड? स्नैक्स पाएंगे क्या अपने जगह रहने के लिए, जो कि हम ह्यूमन सब उसको चेंज कर दिए हैं, रोड में टर्न कर दिए हैं? सारे स्नैक्स की, टोड की, सब की जगह हम सब रोड, पार्क, मॉल बना दिए हैं सब। Human activity often changes or destroys the habitats that plants and animals need to survive. हम अपने स्वार्थ के लिए सारे एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Does a parking lot come first or the Puerto Rican toad? Puerto Rican toad वो कहाँ पर आएंगे? चारों ओर तो पार्किंग, मॉल सब खड़े कर दिए हैं। पुएर्टो रिकन टोड एक टाइप ऑफ फ्रग की प्रजाति हैं, फ्रग होते हैं। विल कोआलास इन देयर होलोज सर्वाइव द रूथलेस लॉगिंग? ऐसे रूथलेस लॉगिंग जो हो रहा है, सब पेड़ पौधा कट कर रहे हैं, तो कोआलास कहाँ जाएंगे? वो तो ट्रीज के वुड में ही रहते हैं, होलोज में ही रहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे कोआलास? शैल वी बोदर टू फाइंड आउट और इज दैट जस्ट टू मच लॉगिंग? हम ये सब परेशानी दूर करेंगे, हम कुछ सोचेंगे ये सब कैसे ठीक होगा, और ऐसे ही स्लोगिंग कर रहे हैं, ऐसे ही बेकार के स्लोगिंग कर रहे हैं। व्हाई डोंट वी रिमेंबर दोज विद हुम वी शेयर द अर्थ? हम सबको यही सोचना चाहिए कि हमारे अर्थ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सब एनिमल, ये सब ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स सब के लिए है। Why won't we honor and value their true oath? We can't let our best friends simply vanish without trace. So let's work together and restore their rightful place. So उनके लिए जो rightful place है, उसको restore करना है। We have to consider every animal as a friend. So हम लोगों को उनको हार्म नहीं करना चाहिए। We should not make attempt to harm them. Animals are friends of our environment. हम लोग अगर ऐसे ही ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऐसे उनको अगर प्रॉब्लम देते रहेंगे तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये जो एनिमल्स हैं वो हमारे फ्रेंड ही हैं, हमारे एनवायरनमेंट के फ्रेंड हैं। सो ये सब हमारे भी फ्रेंड हैं, तो वी शुड सेव देम, वी शुड सेव देयर लाइफ। अर्थ पे हमारा जितना अधिकार है उतना उनका भी है। सो हम सब मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन।